सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्ट 1 हमारा आया था इस वीडियो सीरीज़ का, उसमें कुछ एडिटिंग ब्लूपर्स की वजह से मे बी आप कहीं कहीं पे कोई पॉइंट मिस कर गए हो, बट आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। हमने स्टेम सेल्स और उनकी इंपॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी में क्या है उसको समझने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो के आज के पार्ट 2 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज़ कराऊंगा आपको कि हमने क्या क्या समझने की कोशिश की थी इस पार्ट 1 में। In the previous video, we tried to understand what stem cell is. We now know that stem cells come under undifferentiated cells which are primitive. Okay, so uh, beyond that, in this slide, I try to make you understand the potency of stem cells and on the basis of which stem cells are further categorized into being totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, or unipotent. So friends, now we know that stem cells do not undergo cell division, and the gene NANOG is responsible for such a characteristic of the stem cells. If a cell does not undergo cell division of its own, it is said to be in quiescent stage. We understood that there are two major categories of stem cells on the basis of their source of extraction and source of origin, or the source of origin. And the cell categories are embryonic stem cells and somatic stem cells. In stem cell therapy, embryonic stem cells are always preferred because they always happen to be pluripotent. The somatic stem cells are subcategorized into hemopoietic stem cells and mesenchymal somatic stem cells. In this slide, we try to understand induced pluripotent stem cells, what induced pluripotent stem cells are, and how stem cells are induced back to their juvenile stage without the need for an embryo. And in this later part of the video, I try to tell you one curious case of growing a kidney of mouse inside a rat and the mechanism how it was done using CRISPR-Cas technique. Alright, so that was all that we had studied in the part 1 of this video. So friends, I hope अब आगे बढ़ने से पहले आप stem cells के बारे में जानते हो, what is their use and how they are important for biotechnology, and how the future of biotechnology very much depend upon these stem cells. Alright, so आज हम शुरू करते हैं अब पार्ट 2 जो हमारा आज का लेक्चर है, दैट वुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ DNA एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे हम इसमें, और भी जीनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल पेरेंट बेबी वगैरह और क्लोनिंग के बारे में, वो सब हम आज देखेंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हम अब आज का लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग. So before we study DNA fingerprinting, we must know the DNA and its location in living cells. So I must tell you that cells can broadly be categorized into eukaryotic and prokaryotic. So the eukaryotic cells have a distinct nucleus in it, and the genetic material which we are going to talk about here, the DNA, is embedded within this nucleus. While as in case of the prokaryotic cells, which do not have a distinct nucleus, and the genetic material can be suspended in any part of the cell in case of the prokaryotes. Alright, so in case of the prokaryotes, we have so many examples like bacteria, viruses, and in case of the eukaryotic cells, we have the examples of plants and different animals. You can see the chart here. इसमें दोनों का कंपैरिजन दिया है जो कि हमारे टॉपिक के लिए यूज़फुल नहीं है, बट अगर आप स्टिल जानना चाहेंगे यू मस्ट गो थ्रू दिस. चलो हम देख ही लेते हैं. द बेसिक डेफिनेशन इज़ हैविंग न्यूक्लियस एंड इज़ नॉट हैविंग ए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. ऑलराइट, उसके बाद एग्जांपल इज़ एनिमल, प्लांट एंड फंगाई. इसके बाद इसमें एग्जांपल है बैक्टीरिया. न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट, इज़ नॉट प्रेजेंट. DNA replication, cell size 10 to 100 micrometers. Smaller than that, it is up to 5 micrometers. So DNA replication highly regulated with selective origins and sequences, replicates entire genome at once. Okay, organism type usually multicellular, usually unicellular. Chromosomes more than one long single loop of DNA and plasmids.
So ribosomes are large, ribosomes are smaller. So उसके बाद और भी कंपैरिजन देख सकते हैं आप कि किस में क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. So the basic purpose of why I have put the comparison here is I wanted you people to understand the location of this genetic material, that is DNA, within these prokaryotes and eukaryotes. So DNA is present in nucleus, plastids and mitochondria. Always remember this. So chromosomes happen to be the bearers of the hereditary characteristic. They are made up of DNA and the genes are part of this DNA. जैसे कि मैंने आपको बताया, DNA is present in nucleus, plastid and mitochondria. So always remember this. आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि there are 4 base pairs which are very much important in case of DNA. One is adenine, second is thymine, थर्ड इज़ ग्वानीन, फोर्थ इज़ साइटोसिन. इनका स्ट्रक्चर इस टाइप का है कुछ: एडेनिन, थाइमीन, ग्वानीन एंड साइटोसिन. और हमेशा याद रखिए कि एडेनिन बॉन्ड्स विथ थाइमीन, उनका डबल बॉन्ड बनता है, और ग्वानीन बॉन्ड्स विथ साइटोसिन, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है हाइड्रोजन का किसी भी अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक इंटरेक्शन. ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ. और हर एक मॉलिक्यूल में ऐसा ही है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन. अब ये हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो वीक इंटरेक्शन रहेगा दैट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो 2 मॉलिक्यूल्स यानी कि एक ऐसा हाइड्रोजन विच इज़ कोवेलेंटली बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ having weak interaction, electrostatic interaction with another electronegative element. ठीक है, और इस इंट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन को बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड. आई होप आपने समझ लिया होगा. चलो, सो डीएनए के अंदर 2 शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि स्पाइरल करते हैं एक दूसरे के अंदर. इस टाइप के होते हैं ये, फॉर एग्जांपल. और इन 2 जो शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड्स होते हैं, इनके ऊपर लगे होते हैं ये एडेनिन, ग्वानीन, साइटोसिन. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एडेनिन, ग्वानीन और साइटोसिन लगा है तो ये बॉन्ड किससे बनाएगा? एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन. तो इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर थाइमीन होगा. और ग्वानीन के किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन. तो इस वाले स्ट्रैंड के ऊपर साइटोसिन होगा. अब यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन वापस से ग्वानीन पे बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो ऐसे ही दोनों ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के ऊपर बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दीज बेस पेयर्स which I have already told you, which are adenine, thymine, guanine and cytosine. एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एंड साइटोसिन एंड गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं. और ऐसे ही ये डबल हेलिक्स 2 शुगर फॉस्फेट स्ट्रैंड्स जो है स्पाइरल बना के एक लंबी सी चेन बनाते हैं. और ये कितना लंबा स्पाइरल होता है आपको आगे पता चलेगा. तो फ्रेंड्स, since our topic of discussion here is DNA fingerprinting, so we will restrict the study of DNA to that topic only. So अगर हम DNA की बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल में DNA प्रेजेंट होता है. DNA is a code that holds detailed instructions for building of an organism. इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हारे बाल काले हैं, तुम्हारी आंखें नीली हैं, तुम्हारी नाक लंबी है, every single information is coded within that DNA which is present in every cell of an organism. Now in case of humans, यही information, ये coded information present होती है in a long linear strand of DNA जो कि present होता है न्यूक्लियस के अंदर. और यही long linear strand of DNA जो है ये बना होता है smaller और manageable pieces जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. अब ये DNA
किन से बनता है? क्रोमोसोम से. So friends, in case of humans, we have 3 billion base pairs. When I say base pairs, you already know the base pairs are adenine, thymine, and guanine, cytosine, which are having double and ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो आपको ऑलरेडी पता है बेस पेयर्स इन ह्यूमंस के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होती हैं, divided into 2 copies of 23 chromosomes, in which one is coming from mother and second copy is coming from father. So in total, in one cell there are about 6 billion base pairs in case of humans. अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे इन्फ्लुएंस एवरी सिंगल थिंग इन ए ह्यूमन बीइंग और इन एन एनिमल और इन ए प्लांट. तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोसोम 1 इन केस ऑफ ह्यूमंस contains the genes that controls whether you are susceptible to some forms of malaria or no. Similarly, अगर हम क्रोमोसोम नंबर 16 की बात करें, it is having a gene which influences your hair color. तुम्हारा कलर, हेयर कलर ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लॉन्ड है, क्या है, जो भी है, that is actually encoded on chromosome number 16, and that gene on chromosome number 16 is actually deciding or influencing your color of hair. तो some people have missing chromosomes. So बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या कोई म्यूटेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें कोई चेंज आई हो. तो ऐसे क्रोमोसोम्स, डिफॉर्म्ड क्रोमोसोम्स या म्यूटेटेड क्रोमोसोम्स या मिसिंग क्रोमोसोम्स की वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे लोगों में पाए जाते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, जो कि हमारा टॉपिक डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डीएनए के बारे में चीज़ें बता रहा हूँ. जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने पे ये बेसिक टर्म्स का इस्तेमाल होगा, और उन बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विथ ऑल ऑफ दोज बेसिक टर्म्स. आई होप आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि हमने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं देखा, हमने शुगर फॉस्फेट्स नहीं देखे, हमने और एडेनिन ग्वानिन का एक्चुअल अंदर वाला स्ट्रक्चर नहीं देखा. दैट इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड हियर. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. सो क्या करते हैं हम ये डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसका इतना हुआ बना रखा है. तो चलो देखते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग is a creation of biometric database comprising of DNA information of individuals. ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर DNA इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल्स की, उसको हम DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं उन इंडिविजुअल्स की, और या DNA प्रोफाइलिंग उन इंडिविजुअल्स की. सो आपको एक बात पता होगी कि DNA हर बंदे का यूनिक होता है. आपने सुना होगा, हमेशा से सुना होगा. बट मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप दो बंदों को आमने सामने बिठाते हो और दोनों का जेनेटिक मेकअप चेक करते हो, उन दो इंसानों में 99.9% जो डीएनए होगा दैट वुड बी सिमिलर. फिर 0.1% ही ऐसा डीएनए बचता है जिसमें वेरिएशंस होती है. तो मतलब आप लोगों में से कोई भी एक, या मैं, या आप लोगों में से कोई भी 2 या 3 या 5 या 10, हर किसी बंदे के अंदर जो एक ही स्पीशी के हैं इंसान, जो कि सारे एक ही स्पीशी के हैं, तो हर किसी इंसान के अंदर 99.9% डीएनए यूनिक नहीं होता, बल्कि सिमिलर होता है. और जो यूनिक पार्ट होता है दैट इज़ 0.1%, और उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल रीजन. और इसी यूनिक पार्ट को हम वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं. सो आपको क्या समझ आया कि दो बंदों को या एक ही स्पीशी के दो एडल्ट्स या इंडिविजुअल्स के दरमियान हमेशा और हमेशा आपको याद रखना चाहिए 99.9% सिमिलर डीएनए होता है, और जो टोटल वेरिएशन होती है दैट इज़ ओनली इन 0.1%. एंड इन केस ऑफ दिस फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसी वेरिएबल रीजन को स्टडी करते हैं. और इस स्टडी में हम क्या करते हैं, डीएनए प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल वेरीज इन सम रीजन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इज़ रिपीटेड. आपको समझ आई बात? फिर से बेस पेयर्स की बात हुई यहाँ पे. तो बेस पेयर्स क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन. और एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? थाइमीन के साथ. डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो आपको ये बात समझ आई? तो ये क्या बात कर रहे हैं हम कि जो ये वेरिएबल रीजन है, इसके अंदर डीएनए के अंदर इस वेरिएबल रीजन में यही नंबर ऑफ़ टाइम्स
गुआनिन साइट, यानी कि अगर एक इंसान के अंदर AGCT है तो दूसरे के अंदर GCTT होगा, समझ रहे हो, या कुछ और होगा, कोई भी वेरिएशंस। और इसी बेस पेयर्स के सीक्वेंस में जो वेरिएशन होती है, यही वेरिएशन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। और ऑन द बेस ऑफ दैट वेरिएशन हम ये कंक्लूड करते हैं कि तुम लोग भाई बहन हो, तुम लोग भाई बहन नहीं हो, तुमने चोरी की है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है उसमें आता है। सो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस पेयर सीक्वेंस आर रिपीटेड इन दीज वेरिएबल रीजन्स ए DNA प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल इज इस्टेब्लिश्ड। सो DNA प्रोफाइल एक इंडिविजुअल की कैसे इस्टेब्लिश होती है, हम यही ATGC को क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि भाई ये जो पॉइंट वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स VTNR, ये 0.1% ऑफ द टोटल DNA जो कि डिफरेंट होता है एडल्ट्स में, इंडिविजुअल्स में, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स में। इस 0.1% को जब हम स्टडी करते हैं, हम उसमें क्या स्टडी करते हैं, हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये बेस पेयर सीक्वेंस रिपीट होती है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट नहीं होती। अगर आपके अंदर ATGC है और दूसरे बंदे के अंदर भी ATGC है तो भाई ये भाई बहन हो गए। अगर अब आपके अंदर ATGC है, मेरे अंदर AGTT है या कुछ और है, तो हमारा कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे ही हम इस्टेब्लिश करते हैं प्रोफाइल दो अलग या एक इंडिविजुअल का हम प्रोफाइल इस्टेब्लिश करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, DNA प्रोफाइल, या इसी को बाद में DNA फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। Now let's see the mechanism how this thing is being done. First, DNA is cut with the help of an enzyme called a restriction enzyme. पहले DNA को लिया जाता है, उसको कट किया जाता है, किसकी वजह से, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रहा आपका DNA और इसको आपने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, या मॉलिक्यूलर सीजर्स भी इनको बोलते हैं। ऑन दिस पोर्शन ऑफ DNA सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट इज़ कंडक्टेड। अब देखो सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट क्या है, ये आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखो। ये मैकेनिज़्म बहुत लंबा है, आपको जानने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मैकेनिज़्म ऑफ सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक या किसी भी टेस्ट के मैकेनिज़्म के बारे में कोई बात नहीं पूछी जाती है। बट हाँ, याद होना चाहिए कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक या सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है। आपको पता होना चाहिए कि DNA प्रोफाइलिंग या DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हमने DNA को कट किया, किसकी वजह से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर्स की वजह से। उसके बाद इस DNA कट हुआ DNA, उसको हमने क्या किया, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट किया उस पर। आफ्टर द टेस्ट इज़ डन पर्पल सैंपल इज़ विजिबल। उसके बाद एक पर्पल सैंपल विजिबल होता है, विच व्हेन पास थ्रू एक्सरे। अब इसी पर्पल क्या करते हैं हम, व्हेन पास थ्रू एक्सरे पर्पल सैंपल विजिबल होता है आफ्टर द टेस्ट इज़ डन। उसके बाद एक पर्पल सैंपल हमारे पास बचता है। इस पर्पल सैंपल को हम एक्सरे करते हैं, और इस एक्सरे के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी डेड पर्सन को या क्रिमिनल को या बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, किसी को भी। अगर आपको सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर लेना। इन्फॉर्मेशन जो आपके कांटेक्ट करने के तरीके होंगे सर के साथ, तो आप सर को बता देना, तो मैं आपको ये और भी डिटेल में बता सकता हूँ। तो जस्ट बिकॉज़ कि मैं ये बताना नहीं चाहता, बिकॉज इट्स इमैटेरियल फॉर योर एग्ज़ाम, सो इसलिए नहीं बता रहा मैं, अदरवाइज़ मैं ये बता भी सकता था। ओके, टाइम ना होने के कारण हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या देखा, पहले DNA को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से, उसको कट किया, और उसके बाद सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट उस पर किया। उस ब्लॉटिंग टेस्ट के बाद हमारे पास एक पर्पल सैंपल बचता है। उस पर्पल सैंपल को हमने क्या किया, पर्पल सैंपल को पास किया थ्रू एक्सरे। अब एक्सरे करने के बाद हमारे पास, हम ये कंक्लूड करते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई ये डेड पर्सन का अगर DNA होगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्रिमिनल, इसने क्राइम किया होगा किसी ने, उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और बायोलॉजिकल पेरेंट्स किसी के, उसको कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। चूँकि अभी तक की स्टडी में हमें ये पता चला कि हर एक एडल्ट के अंदर 0.1% DNA यूनिक होता है, उसका जेनेटिक मेकअप यूनिक होता है। क्या ऐसी एक्सेप्शन है कि आपका और आपके पेरेंट्स का DNA, जो कि DNA फिंगरप्रिंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम आपके DNA सैम्पलिंग के बाद ये कंक्लूड ही नहीं कर पाए कि आपके पेरेंट्स कौन है, दो अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कौन हैं?
क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही बंदे के अंदर एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स हो, यानी कि उसके दो अलग अलग सैंपल्स में हमें ये पता चले कि उनकी दो अलग अलग सीक्वेंसिंग है? क्या ऐसा हो सकता है? यस, ऐसा हो सकता है, और वो होता है एक्सेप्शंस में। पहला केस जिसमें हमें ये पता चले कि आपका और आपके पेरेंट का जेनेटिक मेकअप मैच नहीं कर रहा है, तो वो कैसे हो सकता है? जब एक स्पर्म और ओवम मिलते हैं ज़ाइगोट बनने के बाद, अगर कोई जेनेटिक चेंज ऐसे ब्लास्टोसिस्ट में होता है, तो उस केस में या मरूला के अंदर ब्लास्टोसिस्ट से पहले या मरूला के अंदर या ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कोई जेनेटिक चेंज होता है या जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उस केस में जो बंदा बाद में पैदा होगा उसको हम मोज़ाइक इंडिविजुअल या मोज़ाइक एडल्ट बोलते हैं। और इस बंदे के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा दैट वुड बी टोटली डिफरेंट दैन दैट ऑफ हिज पेरेंट्स। सो ऐसी कंडीशन जब एक बंदे का उसके पेरेंट्स के साथ डीएनए मैच नहीं होता है या रिजेंबल नहीं होता है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोज़ाइकिज्म। ऑलराइट, so the second exception to this DNA fingerprinting is an adult which is having more than one fingerprints, which this condition is simply called as chimerism. In this case, chimerism के केस में क्या होता है, ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स के अंदर यूजुअली होता है, यानी कि दो जाइगोट्स दो अलग अलग स्पर्म्स की वजह से बने, एग और स्पर्म मिला, एक जाइगोट और दूसरा जाइगोट, दो अलग अलग जाइगोट्स बने। बट क्या होता है, ये दोनों जाइगोट्स बाद में मरूला बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इनका फ्यूजन होता है, एंड फ्यूजन के दौरान इन एक जाइगोट दूसरे जाइगोट के इस पूरे सेल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस एब्जॉर्प्शन की वजह से बाद में जो एक बंदा पैदा होगा, सो द बेबी बॉर्न बिकॉज ऑफ दिस condition will be having more than one fingerprints. Additionally, in case of humans, chimerism most commonly occurs when a pregnant woman absorbs a few cells from her fetus. The opposite may also happen where a fetus absorbs a few cells from its mother. These cells may travel into mother's or fetus's bloodstream and migrate to different organs. उसके बाद क्या होगा, जब आप सैम्पलिंग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गन से आपने कोई ऐसा सैंपल लिया जिसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करने पर उसकी वो मैच ना हो रहा हो उसके पेरेंट्स के साथ। नाउ आपने देख लिया हाउ मोज़ाइज़म और काइमेरिज्म इज़ एक्सेप्शन टू डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मोज़ाइज़म में क्या होता है? मोज़ाइज़म में होता है ये कि एक बंदा जो पैदा हुआ उसका डीएनए फिंगरप्रिंट उसका डीएनए फिंगरप्रिंट रिजेंबल नहीं होता है उसके पेरेंट्स के साथ, और काइमेरिज्म में एक बंदा जो पैदा हुआ उसके एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स होते हैं। ऑलराइट, उसके रीजंस ये भी हो सकते हैं कि डाइजाइगोटिक ट्विन्स में एक जाइगोट को एब्जॉर्ब करता है दूसरा वाला, और जो दूसरा वाला बंदा पैदा हुआ उसमें अब एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स होते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, विच इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड हैज़ बीन आस्क्ड इन यूपीएससी। With reference to the recent developments in science, which of the following statements is not correct? You have to make sure that you are well aware about the fact what is being asked in the question. If the question is asked, whether the question is asking you which is correct or which is not correct, though I have highlighted this part here. So you have to see that in which of the following statements is not correct. Functional chromosomes can be created by joining segments of DNA taken from cells of different species. एक statement, pieces of artificial functional DNA can be created in laboratories. Third statement, a piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory. Teesra statement and fourth statement, cells taken out from plants and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dish. क्या ये सच है या नहीं है? तो इन चार ऑप्शंस में से आपको देखना है कि गलत कौन सा है। क्या लगता है आपको? देखो भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ कि हम दो अलग अलग स्पीशी के
DNA सेगमेंट्स को मिला के कुछ कोई फंक्शनल क्रोमोसोम बना पाएँ। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नाउ हाउ इट इज़ रॉन्ग एंड हाउ द रेस्ट स्टेटमेंट्स आर राइट, we'll see. In case of this question, the option A is incorrect. Until now, chromosome fusion has been only realized within a species, that is yeast fusion of by Chinese scientists. However, creation of functional chromosomes by joining segments of DNA of different species have not been realized until now. अच्छा, ये पता तो चल गया. So in case of the statement 2, which is saying pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory, क्या ऐसा सच में होता है? क्या आर्टिफिशियल जीन्स को हम लेबॉरेटरी में बना सकते हैं? हाँ, आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस जिसको हम DNA प्रिंटिंग भी बोलते हैं, ना कि DNA फिंगर प्रिंटिंग, DNA प्रिंटिंग जिसको हम आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस भी बोलते हैं, ऐसा हो चुका है सिंथेटिक बायोलॉजी या सिंथेसिस बायोलॉजी में, जिसमें हम आर्टिफिशियल जीन्स लेबॉरेटरी में बनाते हैं. पहले ये कब हुआ? एक पहला कंप्लीट जीन यीस्ट tRNA से बनाया गया बाय हरगोबिंद खुराना एंड हिज कोवर्कर्स इन 1972. सिमिलरली पहला पेप्टाइड एंड प्रोटीन कोडिंग जीन्स भी बनाए गए थे लेबॉरेटरी में बाय हर्बर्ट बॉयर एंड अलेक्जेंडर मरखाम रेस्पेक्टिवली. ओके, तो ऑप्शन बी इस वजह से करेक्ट है. A piece of DNA taken out from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory. इस वजह से स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हुआ. बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, PCR टेक्नोलॉजी. अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी क्या है? आपने सुना होगा अभी जो कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं ना, उनको हम RT-PCR बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अभी उसी टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं? हम करते हैं DNA को रेप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लेबॉरेटरी. अब हम क्या करते हैं? आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं या आपका जो स्वैब सैंपल ले लेते हैं, उस पे हम क्या करते हैं? बाद में एक लेबॉरेटरी में उसका टेस्ट होता है RT-PCR, और यहाँ पे हम नॉर्मल PCR की बात कर रहे हैं. इसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी, और उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्नोलॉजी. अब वो अलग कहानी है, वो कैसे होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक वो है नहीं. कभी जब हम नोवेल कोविड पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा इस बायोटेक्नोलॉजी में, तब हम RT-PCR के बारे में भी जानेंगे. देखो, इस वजह से स्टेटमेंट बी भी करेक्ट हुआ. स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट. एज सेल्स कैन बी टेकन फ्रॉम plants and animals and can be made to undergo cell division in laboratory and in petri dishes in the culture medium. Thus statement D is also correct. So tissue culture आपने पढ़ा ही होगा, तो ऐसा तो होता ही है. चलो, हो गया ये भी. So friends, that's all for today. Thank you.